Hello students, today we are going to discuss the topic concept of drawings. Drawing means when partners withdraw the amount for his personal use, it is called as drawing. Drawings may be broadly divided into two parts. Drawing divided in two parts. One is irregular drawings, and another one is regular drawings. Irregular drawings means it means that drawings amount not uniform and the amount is not withdrawn. Amount is not withdrawn in a proper sequence. And drawings withdrawn at irregular intervals. So such type of drawing is called as irregular drawings. Now, what is regular drawings? Regular drawings means when the same amount has been withdrawn by the partners in a proper sequence and there is a uniformity at regular intervals. So we can say that amount of drawings drawn by partners in a proper sequence, or we can say that same amount withdrawn at regular intervals, such type of drawing is called as regular drawings. The important methods with the help of which we can calculate the interest on drawing. These methods are methods of calculation of interest on drawings. How we can calculate the interest on drawings? There are two methods. Number one, first method is product method. And the second one is average period method. Let us understand what is product method. Product method means when the date of drawings are unequal. When the dates are unequal and the amount of drawings are also unequal, at that time we use product method. So here we can say that when there is no uniformity
in dates and in the amount of drawings. तो unequal amount of drawings and unequal time interval between two drawings. So we can say that product method is used where there is a unequal amount of drawings and unequal time interval between the two drawings, where there is no uniformity. जहां पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है ड्राइंग्स में, उस केस में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रोडक्ट मेथड. नो यूनिफॉर्मिटी. Students, average period method. The second method is average period method. Average period method is used where there is a proper uniformity in amount of drawings, and time interval and proper uniformity in time interval between two drawings. So in short, we can say that average period method is used where proper uniformity in the amount of drawings and proper uniformity in time interval between two drawings. So these are the two important methods which are used for calculation of interest on drawing. Here students, let us discuss and understand the first method, product method, with the help of this problem. अभी हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो ये आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए. नाउ हियर द प्रॉब्लम इज कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स at the rate of 12% per annum for the year 2016. Students, here the calendar year is used and the rate of interest on drawing is 12%. यहाँ पे जो मंथ्स हैं वो अनइक्वल है. डेट्स देखिए यहाँ पे अनइक्वल हैं, उनमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है. ना यूनिफॉर्मिटी डेट्स में है, ना यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे अमाउंट्स में है. कभी फरवरी में 3000 विड्रॉ किया गया है, अप्रैल में 4000, फिर जून में 3000, सितंबर में 5000. देयर इज नो सिमिलैरिटी एंड नो प्रॉपर कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्मिटी वी हैव सीन हियर. सो दैट्स व्हाई हियर वी यूज प्रोडक्ट मेथड. वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट मेथड. Calculation of interest on drawings. Students, firstly you make a table, make the columns. The first column is like this. First column is your date column. Then amount of drawings, जितना जितना पैसा विड्रॉल किया गया है वो अमाउंट इस कॉलम में आपने लिखना है.
नेक्स्ट अमाउंट ऑफ ड्राइंग के बाद नंबर ऑफ मंथ्स अप टू, यहां पे कैलेंडर ईयर को यूज किया गया है। यहां देखिए ईयर 2016 का हमने यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1 मंथ का अप टू 31 दिसंबर। यहां पे कैलेंडर ईयर को यूज किया गया है जनवरी टू दिसंबर। एंड द लास्ट कॉलम इज प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, हाउ वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड with the help of this technique, amount of drawing multiply by number of months। तो यहां पे आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, इससे आपका प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यहां देखिए February 1st, first of all you have to write the date and amount of drawing। let's start February 1st को 3000 विड्रॉन किया है पार्टनर्स ने। देन अप्रैल 30 4000 रुपीज विड्रॉन किए गए हैं ड्राइंग्स के। देन जून 1st 3000 विड्रॉन किया गया है। देन सितंबर 30 में 5000 विड्रॉन किया गया है। देन नवंबर 1st को 7000 विड्रॉन किया गया है। देन दिसंबर 31st विड्रॉन किया गया है 2000। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स को फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मंथ्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो यहां पे आएगा अप टू 31 मार्च, बट हियर इन दिस प्रॉब्लम देयर इज अ कैलेंडर ईयर इज यूज्ड। तो ये आ गया हमारा February 1st से देखिए 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए। February 1st को भी लेना है क्योंकि February 1st से ड्राइंग्स आई हैं, तो February 1st से लेके 31 दिसंबर तक हाउ मेनी मंथ्स, 11 मंथ्स। ये आ जाएंगे 11 मंथ्स, February, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाउ मेनी मंथ्स, 11 मंथ्स। तो यहाँ पे 11 मंथ्स आ जाएंगे। सिमिलरली सभी स्टेप्स में हमने धीरे धीरे ऐसे ही कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट ड्राइंग देखिए अप्रैल 30, तो अप्रैल 30 को ड्राइंग्स निकाला है 4000। तो अप्रैल 30 को 4000 निकाला है तो इसकी काउंटिंग जो है वो 1 मई से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द मंथ निकाली गई हैं। तो मई से लीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहां पे हमारे कितने हो गए, 8 मंथ्स। देन जून 1st, जून से काउंटिंग कीजिए 31 दिसंबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ्स, राइट, 7 मंथ्स। देन सितंबर 30, यहां पे फिर से ड्राइंग्स जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ निकाली गई हैं, तो लास्ट डेट को हमने काउंट नहीं करना है। हमारी काउंटिंग जो है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर ईयर है यहाँ पे, तो आप यहां से अक्टूबर से लेकर नवंबर तक काउंट करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पे कितने मंथ्स आ जाएंगे, 3 मंथ्स। उसके बाद नवंबर 1st को ड्राइंग्स निकाली है 7000, तो नवंबर का मंथ आ जाएगा यहाँ पे और एक दिसंबर का आ जाएगा। कितने मंथ्स हो गए, 2। देन दिसंबर 31 2000, तो यहाँ पे ये ड्राइंग्स जो है ये एंड ऑफ द मंथ विड्रॉन की गई है, तो दिसंबर 31 को निकाला गया है 2000, तो यहाँ पे एक भी मंथ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। आप प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आपने ड्राइंग को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, नंबर ऑफ मंथ्स के साथ। तो यह आ गया 3000 इंटू 11 3 जा 33, तो ये आ गया 33,000। देन 4000 इंटू 8 मंथ्स, 8 4 जा 32,000। 3000 इंटू 7, 3 7 जा 21, तो 3000 इंटू 7 ये हो गया 21,000। देन 5000 इंटू 3, 5000 इंटू 3, 5 3 जा 15, तो ये आ गया 15,000। देन 7000 इंटू 2,
7,000 into 2, 14,000. So this is the way which is used for calculation of product. Then 2,000 into 0, यहाँ पे कोई भी मंथ्स नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि ये ड्राइंग्स एंड में निकाली गई थी तो यहाँ पे कोई मंथ्स नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 0. तो स्टूडेंट्स अब आप इसको क्लोज कर दीजिए. अब आपने जो आपने प्रोडक्ट निकाला है इस प्रोडक्ट का क्या करोगे आप, सम करोगे. तो इसका सम कर लीजिए, क्या आ जाएगा 0 0 0, यह आ गया 1,15,000. 1,15,000 इज व्हाट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट. इसको हम क्या कहेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट. तो यह आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट. नाउ अब हमने प्रोडक्ट मेथड से क्या निकालना है, ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालना है. तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, राइट हियर अप्लाई द फॉर्मूला. अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट on drawings, interest on drawings equals to total of product, total of product, total of product multiply by rate of interest upon 100 multiply 1 by 12 or 1 by 365. ये 1 by 12 और 1 by 365 का यहाँ पे ये मतलब रहेगा कि 1 by 12 यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये ड्राइंग का इंटरेस्ट ये 1 मंथ का निकाल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर अभी हम जो निकाल रहे हैं ये मंथ्स में निकाल रहे हैं इंटरेस्ट. ठीक है, मंथ्स का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मंथ्स आएंगे. अगर ये इंटरेस्ट हमने डेज में निकालना होगा देन वी टेक 1/365. तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया स्टूडेंट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 1,15,000, 1,15,000. 1,15,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ, नेक्स्ट स्टेप इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 12% जो हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है. तो राइट हेयर 12/100 इंटू 1/12. दिस इज द फॉर्मूला. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा हमारा ₹1,150. ये हमारा आ गया आंसर. सो दिस इज द वे, दिस इज द टेक्निक with the help of which we can calculate the interest on drawing under product method. So students, we will discuss the next method, average period method, in next class. Okay, thank you.